So hello dear students, welcome to my channel Gateway for Engineers. Now in the today's class we will discuss further in our topic, that is torsion of shaft. Torsion of shaft में हम further discussion करेंगे. So till now we have discussed various concepts about torsion of shaft. Torsion of shaft से related हमने कुछ basic concepts देख लिए हैं. Now we will discuss further and we will try to develop some more concepts related to torsion of shaft. So the next topic that we are going to study in torsion of shaft is shear stress distribution along the cross section. So now we will discuss about कि किस तरीके से shear stress का वेरिएशन होता है along the cross section. ठीक है, किस तरीके से shear stress का वेरिएशन होता है along the cross section. Now इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक हमने पढ़ा हुआ है, that shear stress is directly proportional to distance of the fiber from the center of cross section, that is tau is directly proportional to r. So हमने ये पढ़ा हुआ है that tau is directly proportional to r. कब होता है ये, कब होता है when you are talking about a particular cross section. ठीक है, अगर किसी एक particular cross section की बात करोगे then shear stress is directly proportional to distance of the fiber from the center of the shaft. Now we will discuss shear stress variation for different kind of circular cross section. Since हमने पहले ही बता दिया assumption में ही कि जो पूरा theory of torsion है, theory of pure torsion, वो हम किसके लिए पढ़ेंगे, only and only for circular shafts. तो circular shape के लिए जो different type के shafts possible है, such as hollow circular shaft, solid circular shaft या circular tubes, तो इनके लिए हम क्या देखेंगे, इनके लिए हम देखेंगे कि किस तरीके से shear stress वेरिएशन देता है along the cross section. along the cross section किस तरीके से shear stress वेराई करता है. So सबसे पहले मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, the first cross section is solid circular cross section. So first it's solid circular cross section. Now if I consider a solid circular cross section, अगर एक solid circular cross section लेता हूँ मैं, so this I have taken a solid circular cross section. This is a solid circular cross section. Now what we will do, we will try to analyze कि along the radius किस तरीके से shear stress का variation हो रहा है in this solid circular cross section. So we will try to analyze कि along the radius किस तरीके से variation हो रहा है. Now since this is a solid circular cross section, इसलिए मैंने dotted दिखाया है कि this is solid, not hollow, this is solid. So I am writing this is center of the shaft O, and I am considering the radius of the shaft, that is capital R. ठीक है, center of the shaft is O and radius is capital R. Since we know that shear stress is directly proportional to R, that is distance of the fiber from the center. So center से periphery की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, shear stresses increase होंगे linearly, and at the center the value of shear stress is what, it is 0. So if we draw a stress distribution, so it will be somewhat like this. So the stress distribution is linear like this. ठीक है, center पे कितना हो जाएगा stress, the value of stress at center is 0, and the value of stress at the outermost fiber, that is at circumference, it is equals to tau max. Center पे कितना हो जाएगा stress 0, and periphery पे कितना हो जाएगा, that is circumference पे कितना हो जाएगा, it is equals to tau max. Now कई बार stress का variation इस टाइप से भी डिनोट किया जाता है. प्लीज लुक हियर लाइक दिस. देखिए स्ट्रेसेस का वेरिएशन इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है. सो अगर स्ट्रेसेस को इस तरीके से डिनोट किया जा रहा है देन ऑल्सो इट इज़ परफेक्टली फाइन. ठीक है, इस तरीके से भी स्ट्रेसेस को डिनोट किया जाता है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस को डिनोट किया जाता है अलॉन्ग दी रेडियस. अलॉन्ग दी रेडियस इस तरीके से भी आप स्ट्रेसेस का वेरिएशन डिनोट कर सकते हैं. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक इस तरफ बनाना है, दूसरा 0 एक्सिस के इस तरफ बनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. दोनों ही आप 0 एक्सिस के एक साइड पे बना सकते हैं. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ टाउ मैक्स, this is also the value of tau max, this is 0 and this is also the value of tau max. ठीक है, so at the periphery the value of shear stress will be equals to tau max, and at the center the value of shear stress is how much, it is equals to 0, and the variation of shear stress is linearly vary करेगा from 0 to maximum linearly vary करेगा. Now second case देखिए, second case is hollow circular cross section.
तो सेकेंड सेक्शन जिसके अलोंग हम shear स्ट्रेस का वेरिएशन स्टडी करेंगे, दैट इज हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. नाउ आई एम कंसिडरिंग अ हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. सो दिस इज अ हॉलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन. इन दिस मटेरियल इज प्रेजेंट ओनली इन दिस पार्ट. ठीक है, सिर्फ इस पार्ट में ही मटेरियल प्रेजेंट है. इन द सेंटर द सेक्शन इज हॉलो. सो फॉर दिस सेक्शन, this I am just marking the center. So this is the center O, and I am marking radius. So the outer radius for this hollow circular cross section, I am marking it as R0 or R0 or R outer, and the inner cross section is Ri. Outer cross section is Ro and inner cross section is how much? It is Ri. Now for this hollow circular cross section, again the variation of shear stress will be linear. ठीक है, and maximum shear stress कहाँ पे आएगा? Maximum shear stress will be at the circumference. ठीक है, outer circumference पर ही maximum आएगा. वेरिएशन कैसा आएगा? लीनियर आएगा. बट जो shear stress डेवलप होगा वो किस में डेवलप होगा? सिर्फ मटेरियल में ही डेवलप होगा. जहाँ पे हॉलो सेक्शन है, जहाँ पे मटेरियल नहीं है, वहाँ पे कोई shear stress डेवलप नहीं होगा. सो इफ आई ड्रॉ वेरिएशन, देन द वेरिएशन विल बी लाइक दिस. इस तरीके का वेरिएशन होगा. बट जो सेंटर है, सेंटर में मटेरियल इज नॉट गोइंग टू रजिस्ट द टॉर्शन. जहाँ पे मटेरियल नहीं है वहाँ पे टॉर्शन रजिस्ट नहीं होगा. ठीक है, दैट मीन्स सेंटर वाले पोर्शन में द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस विल बी जीरो. स्ट्रेस कहाँ पे डेवलप होगा? सिर्फ वहीं पर ही डेवलप होगा जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है. सो दिस इज द वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस. ठीक है, दिस इज द वेरिएशन ऑफ shear स्ट्रेस. जहाँ पे मटेरियल है सिर्फ वहीं पे ही shear स्ट्रेस डेवलप होगा लाइक दिस. So this is the value of tau max. Again this is the value of tau max. So if I draw center, so shear stress डेवलप तो होगा सिर्फ और सिर्फ जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है वहीं पे. पर अगर आप इस स्ट्रेस को एक्सटेंड करोगे तो ये जो स्ट्रेस है वो सेंटर पे क्या आएगा? वेरिएशन ऐसा होगा कि सेंटर पे द वैल्यू ऑफ वेरिएशन विल बी जीरो लाइक दिस. सेंटर पे क्या होगा? वेरिएशन जीरो होगा. और इसको थोड़ा मैं फेंट बनाता हूँ. सो द वेरिएशन एट द सेंटर विल बी जीरो. स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो कैसा, कहाँ पे डेवलप होगा? सिर्फ और सिर्फ वहीं पे डेवलप होगा जहाँ पे मटेरियल प्रेजेंट है. जहाँ पे मटेरियल नहीं है वहाँ पे स्ट्रेस डेवलप नहीं हो सकता. बट वेरिएशन कैसा रहेगा? वेरिएशन लीनियर रहेगा. ठीक है, वेरिएशन ऐसा रहेगा कि टॉप मोस्ट पेरीफेरी पे टाउ मैक्स आएगा, बॉटम मोस्ट पेरीफेरी पे टाउ मैक्स आएगा. दैट इज पेरीफेरी पे मैक्सिमम shear स्ट्रेस आएगा. बट जो shear स्ट्रेस का वेरिएशन है वो ऐसा रहेगा कि सेंटर पे अगर आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो सेंटर पे स्ट्रेस क्या होगा? जीरो होगा. ठीक है, वेरिएशन ऐसा होगा, ये जो वेरिएशन है ये ऐसा होगा कि सेंटर पे जो स्ट्रेस का वैल्यू है वो कितना आएगा? जीरो आएगा. अगर एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो सेंटर पे जीरो आना चाहिए. So this is the variation of shear stress for hollow circular cross section. Now third देखेंगे हम. थर्ड is composite circular cross section. So the third is composite circular cross section. Now composite sections क्या होते हैं हमें पता है. हमें पता है कि composite sections वो sections होते हैं which are made up of two or more than two materials and the materials are joined face to face and the materials are joined face to face and there is a perfect bond between the materials. तो हमें पता है कॉम्पोजिट मटेरियल्स क्या होते हैं? जो दो या दो से ज़्यादा मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. एंड जो मटेरियल से उनको कैसे ज्वाइन किया जाता है? फेस टू फेस. एंड उनमें क्या होता है? देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड. ठीक है, अब कैसा दिखेगा कॉम्पोजिट शाफ्ट? सो दिस इज अ कॉम्पोजिट शाफ्ट. दिस इज व्हाट? दिस इज अ कॉम्पोजिट शाफ्ट. इट इज मेड अप ऑफ टू मटेरियल, 1 and 2, and there is a perfect bond face to face. now ये दोनों मटेरियल्स के बीच में there is a perfect bond face to face. इसकी वजह से क्या होगा? at the junction, जंक्शन पे क्या होगा? दोनों ही मटेरियल में जो shear स्ट्रेन है वो क्या आएगा? सेम आएगा. द वैल्यू ऑफ y at the junction will be सेम. जंक्शन पे जिस पॉइंट पे इन दोनों में परफेक्ट बॉन्ड है उस पॉइंट पर there will be
देयर विल बी सेम वैल्यू ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ shear strain। यही हमने पढ़ा था कंपोजिट शाफ्ट और एक्सियली लोडेड मेंबर्स के केस में भी हमने देखा था कंपोजिट शाफ्ट, उसमें क्या हो रहा था, डिफॉर्मेशंस जो है सेम आ रहे थे, दोनों मटेरियल्स में सेम डिफॉर्मेशंस आ रहे थे। यहाँ भी दोनों मटेरियल में क्या होगा, जंक्शन पे क्या होगा, जंक्शन पे द वैल्यू ऑफ shear strain विल बी सेम एट द जंक्शन, द वैल्यू ऑफ shear strain और यू कैन से फाई क्या होगा, सेम होगा। सो now this is a composite shaft and this composite shaft is made up of two material, दो मटेरियल से मिलकर बना है ये composite shaft। इसका मतलब क्या होगा कि जो मटेरियल है उनका the value of G will be different, so सेकेंड वाले मटेरियल का G is G2, फर्स्ट वाले मटेरियल का G is G1। ठीक है, दोनों मटेरियल का जो शेयर मॉड्यूलस है वो क्या है, अलग अलग है, तभी तो ये कॉम्पोजिट शाफ्ट होगा। दो अलग अलग मटेरियल होंगे तो दोनों मटेरियल का क्या होगा, द वैल्यू ऑफ जी विल बी डिफरेंट। तो जो फर्स्ट मटेरियल है, जो आउटर मटेरियल है, उसका हमने जी अज्यूम कर लिया G1 है, एंड जो इनर मटेरियल है उसका जी अज्यूम कर लिया G2। नाउ इसके केस में आप देखिए किस तरीके से शेयर स्ट्रेस वेराई करेगा। सो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर ये कॉम्पोजिट शाफ्ट सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होता तो क्या होता, अगर ये कॉम्पोजिट शाफ्ट सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट होता तो क्या होता, उन इन दैट केस जी क्या होता, G1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, G2। अगर ये होमोजीनस मटेरियल से मिलके बना होता दैट इन दैट केस G1 किसके बराबर हो जाता, G2 के बराबर। सो अगर ये होमोजीनस मटेरियल से मिलकर बना होता, अगर ये होमोजीनस मटेरियल से मिलकर बना होता दैट इज G इज इक्वल्स टू G1 इज इक्वल्स टू G2, तो इन दैट केस क्या होता, इन दैट केस इसका शेयर स्ट्रेस वेरिएशन विल बी, जो अभी हमने देखा था फॉर अ सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए जो हमने शेयर स्ट्रेस वेरिएशन देखा था, वैसा ही शेयर स्ट्रेस वेरिएशन आता है इसका भी। अगर G इज इक्वल्स टू G1 इज इक्वल्स टू G2 हो जाता, देन इन दैट केस क्या होता कि ये कैसे बिहेव करता, दिस विल बिहेव एज अ होमोजीनस मटेरियल। होमोजीनस मटेरियल हो जाता मतलब एक ही मटेरियल से बना हुआ होता, तो क्या हो जाता है, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हो जाता है। एंड सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए अभी हमने देखा था शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन इज लीनियर, टॉप मोस्ट पे मैक्सिमम होता है, बॉटम मोस्ट मैक्सिमम होता है, एंड वेरिएशन इज लीनियर लाइक दिस। तो ये अभी हमने देखा था। नाउ अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकती है। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दैट G1 इज लेस देन G2, एंड दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है G1 इज ग्रेटर देन G2। पहला पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, दैट G1 इज लेस देन G2, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है G1 इज ग्रेटर देन G2। सो बिफोर मूविंग ऑन टू दीज पॉसिबिलिटीज हम देखते हैं कि शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है अकॉर्डिंग टू जी के साथ में शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है। सो हमें पता है दैट टाउ इज इक्वल्स टू G इंटू फाइव, हमें पता है दैट टाउ इज इक्वल्स टू G इंटू फाइव। एंड अभी हमने डिस्कस किया दैट फॉर अ कॉम्पोजिट सेक्शन देयर इज अ परफेक्ट बॉन्ड फेस टू फेस। फेस टू फेस क्या होता है, द बॉन्ड इज परफेक्ट, दैट मीन्स जो ये फेस है, जिस फेस पे दोनों मटेरियल को आपने ज्वाइन किया हुआ है, इस फेस पर द वैल्यू ऑफ फाई इज सेम। दोनों मटेरियल में फाई का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ पे फाई का वैल्यू सेम है तो टाउ किसके प्रोपोर्शनल हो गया, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू G। दैट मीन्स जैसे ही आप G1 से G2 में जाएंगे, दैट मीन्स मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाएंगे या मटेरियल 1 से मटेरियल 2 में जाएंगे, तो जो वेरिएशन G में होगा सेम वेरिएशन किस में दिखेगा आपको, सेम वेरिएशन दिखेगा आपको इन दी शेयर स्ट्रेस। जो वेरिएशन G में होगा सेम वेरिएशन दिखेगा आपको शेयर स्ट्रेस में। अगर G का वैल्यू बढ़ेगा तो शेयर स्ट्रेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर G का वैल्यू कम होगा तो शेयर स्ट्रेस भी क्या होगा, कम होगा। सो यहाँ पे देखिए G1 इज लेस देन G2, G1 इज लेस देन G2, दैट मीन्स आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाओगे, मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाओगे तो G क्या हो रहा है, G सडनली रिड्यूस हो रहा है, G इज गेटिंग रिड्यूस। सो आप जैसे ही मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाओगे, मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में, तो G क्या हो रहा है, G सडनली रिड्यूस हो रहा है, G इज गेटिंग रिड्यूस। दैट मीन्स अगर आप शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन बनाते हैं एंड आप स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द सेंटर से आप स्टार्ट करेंगे। सो जैसे ही ये तो आपने मटेरियल 2 के लिए शेयर स्ट्रेस वेरिएशन बना लिया। अब जैसे ही मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में आप एंटर करोगे तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस सडनली रिड्यूस हो जाएगा, एंड देन द वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस विल बी लीनियर लाइक दिस। समझ में आया।
जैसे ही आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में एंटर किए, यहाँ पे क्या था, मटेरियल 2 तक आपने बनाया, दिस इज शेयर स्ट्रेस वेरिएशन इन मटेरियल 2, और जैसे ही आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में एंटर किए तो शेयर स्ट्रेस क्या हो गया, सडनली रिड्यूस हो गया, शेयर स्ट्रेस सडनली रिड्यूस हो गया। क्यों? क्योंकि जी की वैल्यू सडनली रिड्यूस हो गई, कहाँ से, फ्रॉम G2 टू G1। सेम आप देखिए बॉटम में भी आपका ऐसे ही वेरिएशन आएगा शेयर स्ट्रेस का। सो शेयर स्ट्रेस विल वेराई लीनियरली इन द पोर्शन 2, जो मेंबर 2 है या मटेरियल 2 है उसमें लीनियर वेरिएशन होगा, और जैसे ही 2 से 1 में जाएगा मटेरियल, वैसे ही क्या होगा, शेयर स्ट्रेस सडनली रिड्यूस हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली रिड्यूस हो जाएगा, एंड वेरिएशन विल बी लाइक दिस। समझ में आया आपको? समझ में आया? नाउ अब देखिए द वेरिएशन ऑफ शेयर स्ट्रेस इन दी मेंबर 2 इज लीनियर। ठीक है, मेंबर 2 में शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा है, लीनियर है। सेंटर पे शेयर स्ट्रेस कैसा है, 0 है। अगर मेंबर 1 के शेयर स्ट्रेस को भी आप ज्वाइन करोगे तो ये भी कैसा आएगा, लीनियर आएगा। और सेंटर पे क्या आएगा, सेंटर पे द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस, इस लीनियर वेरिएशन को भी आप एक्स्ट्रापोलेट करोगे तो भी सेंटर पे क्या आएगा, शेयर स्ट्रेस विल बी 0। तो आप ये याद रखेंगे कि वेरिएशन कैसा होता है, शेयर स्ट्रेस का हमेशा लीनियर होता है, और अगर उसको आप एक्स्ट्रापोलेट कर दो सेंटर पे तो सेंटर पे शेयर स्ट्रेस 0 आना चाहिए। दैट मीन्स ये जो वेरिएशन है इसका स्लोप ऐसा होना चाहिए कि सेंटर पे क्या है, सेंटर पे ये वैल्यू शेयर स्ट्रेस की 0 आनी चाहिए। समझ में आया? तो शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आ रहा है, लीनियर आ रहा है इन बोथ दी मेंबर्स 1 एंड 2, बोथ दी मटेरियल 1 एंड 2, दोनों मटेरियल में शेयर स्ट्रेस का वेरिएशन लीनियर आ रहा है। बट जैसे ही आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जा रहे हो, मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जैसे ही गए वैसे ही शेयर स्ट्रेस में क्या हो गया, सडन चेंज आया। क्यों सडन चेंज आया? क्योंकि जी की वैल्यू में सडन चेंज आया था, एंड जी का वैल्यू अगर सडनली रिड्यूस हो गया तो शेयर स्ट्रेस भी क्या हो गया, सडनली रिड्यूस हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, देखिए दैट शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन, दिस इज इक्वल्स टू G इंटू फाई एट जंक्शन। शेयर स्ट्रेस जंक्शन में क्या हो जाएगा, जंक्शन पे द वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू G इंटू जो भी जंक्शन पे शेयर स्ट्रेन आ रहा है। अब देखिए जंक्शन पे जो G का वैल्यू है वो दो वैल्यूज मिल रही है आपको, एक G2 मिल रही है, एक G1 मिल रही है। तो शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन इन मेंबर 1, दिस इज इक्वल्स टू G1 इंटू फाई एट जंक्शन। शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन इन मटेरियल 1, मटेरियल 1 में जंक्शन पे शेयर स्ट्रेस, मटेरियल 1 में जंक्शन पे शेयर स्ट्रेस इज विच वैल्यू, इज दिस वैल्यू, दिस वैल्यू इज टाउ जंक्शन 1। ठीक है, शेयर स्ट्रेस एट जंक्शन इन मटेरियल 1 इज दिस वैल्यू, ये वैल्यू है। सो टाउ जंक्शन 1 is equals to G1 into phi at junction. Similarly, shear stress at junction in material 2 is G2 into phi at junction. अब ये देखिए ये कौन सा वैल्यू है, फिगर में देखिए, फिगर में दिस वैल्यू इज टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 2। ठीक है, दिस इज द जंक्शन, ये जंक्शन है, ये जंक्शन पे आपको दो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू मिल रही है, टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 1 एंड टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 2। ठीक है, आपको दो वैल्यू मिली शेयर स्ट्रेस की। सो टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 1 इज G1 इंटू फाई जंक्शन, टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 2 इज G2 इंटू फाई जंक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए फाई जंक्शन इज सेम, फाई जंक्शन क्या है, सेम है। क्यों सेम है? बिकॉज इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोजिट मटेरियल। So composite material is made up of two or more materials and these materials are joined face to face and there is a perfect bond. So जिस जंक्शन पे दोनों को ज्वाइन किया है वहां पे क्या है, there is a perfect bond, और perfect bond है तो क्या होगा, फाई दोनों में सेम होगा। कहाँ पे, जहाँ पे उन दोनों को ज्वाइन किया है, जिस पॉइंट पे दोनों मटेरियल को आपने ज्वाइन किया वहां पे फाई सेम होगा। So this equation that shear stress in junction 1 is equals to G1 into phi at junction, shear stress at junction 2 is equals to G2 into phi junction। phi junction तो सेम है, that is shear strain at junction is same। अब जैसा G का वेरिएशन आएगा वैसे ही क्या होगा, shear stress का वेरिएशन आएगा। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है that tau at junction in material 1 upon tau at junction in material 2 this is equals to G1 upon G2। इससे रिलेटेड आपसे वो न्यूमेरिकल्स पूछ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछ सकता है कि किस तरीके से वेरिएशन होता है शेयर स्ट्रेस का एट दी जंक्शन। अब ये तो हो गया केस व्हेन
G1 इज लेस देन G2। अब देखते हैं व्हेन G1 इज ग्रेटर देन G2, दैट मीन्स सडनली क्या हुआ, अगर आप सेंटर से आउटर की तरफ जा रहे हो, मतलब 2 से 1 की तरफ जा रहे हो, तो क्या हुआ, सडनली शियर स्ट्रेस, सडनली द वैल्यू ऑफ G इंक्रीज हो गया, G का वैल्यू क्या हो गया, सडनली इंक्रीज हो गया, अगर आप 2 से 1 की तरफ जा रहे हो तो। सो इस केस के लिए देखते हैं द वेरिएशन ऑफ शियर स्ट्रेस। तो देखिए शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होगा, सेंटर पे तो शियर स्ट्रेस 0 होगा, एंड इन द मटेरियल टू शियर स्ट्रेस विल वेराई लीनियरली, और जैसे ही 2 से 1 में जाएगा वैसे ही क्या होगा, शियर स्ट्रेस विल सडनली इंक्रीज, शियर स्ट्रेस क्या होगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा लाइक दिस। जैसे ही मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाएंगे आप, तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस सडनली इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली आप सेंटर से नीचे वाले पोर्शन में भी देख सकते हैं। सो दिस इज द लीनियर वेरिएशन, ये लीनियर वेरिएशन है। नाउ जैसे ही मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में जाएंगे वैसे ही क्या होगा, शियर स्ट्रेस सडनली इंक्रीज कर जाएगा लाइक दिस। तो जैसे ही आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में गए, शियर स्ट्रेस क्या हो गया, सडनली इंक्रीज कर गया। समझ में आया क्यों शियर स्ट्रेस सडनली इंक्रीज किया मटेरियल 2 से 1 में, क्योंकि जी का वैल्यू सडनली इंक्रीज हो गया, ठीक है। एंड हमने देखा था यहाँ से टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी, फाई इज कांस्टेंट, सो एट द जंक्शन फाई कांस्टेंट है, जंक्शन पे फाई क्या है, सेम है दोनों मटेरियल्स में। तो जैसे ही आप मटेरियल 2 से मटेरियल 1 में गए, क्या हो गया, शियर स्ट्रेस सडनली इंक्रीज हो गया। नाउ दिस इज टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 2 एंड दिस इज टाउ एट जंक्शन इन मटेरियल 1, ठीक है। जंक्शन पे शियर स्ट्रेसेस में कैसा रिलेशन है, जो रिलेशन जी में है वही रिलेशन क्या है, जंक्शन पे शियर स्ट्रेस में रिलेशन है, ठीक है। आया समझ में। नाउ अगेन अगर मैं इसको ज्वाइन करता हूँ, किसको, जो पोर्शन 1 में शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आ रहा है, अगर इसको मैं ज्वाइन करता हूँ, सो दिस विल पास थ्रू सेंटर, ये किससे पास होगा, सेंटर से पास होगा। तो ये जो वेरिएशन है इन मटेरियल 1, ये मटेरियल 1 का वेरिएशन कैसा होगा, ऐसा होगा कि ये सेंटर से पास करेगा लाइक दिस, ठीक है, दिस विल पास थ्रू सेंटर लाइक दिस, ठीक है। स्ट्रेट लाइन वेरिएशन तो आएगा, लीनियर वेरिएशन तो आएगा, बट कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि ये सेंटर से पास करेगा लाइक दिस। क्लियर है, समझ में आ गया किस तरीके से होता है शियर स्ट्रेस का वेरिएशन इन कॉम्पोजिट सेक्शन। इससे न्यूमेरिकल आ सकते हैं आपके एग्जाम में। नाउ नेक्स्ट देखिए केस नंबर 4, दैट इज सर्क्यूलर ट्यूब। केस नंबर 4 इज अ सर्क्यूलर ट्यूब। नाउ सर्क्यूलर ट्यूब के बारे में हमने देखा था, सर्क्यूलर ट्यूब इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हॉलो सर्क्यूलर सेक्शन, बट उसमें क्या होता है, थिकनेस इज वेरी 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 लेस एज कंपेयर टू द रेडियस। रेडियस से क्या होता है, थिकनेस बहुत ही कम होती है। सो दिस इज अ सॉलिड सर्क्यूलर ट्यूब, ठीक है, दिस इज अ सर्क्यूलर ट्यूब। एंड इस सर्क्यूलर ट्यूब के अलॉन्ग अगर हम वेरिएशन देखें शियर स्ट्रेस का, तो शियर स्ट्रेस विल वेराई लाइक दिस। शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा। तो फ्रॉम हियर यू कैन क्लियरली सी दैट शियर स्ट्रेस इज यूनिफॉर्म। तो शियर स्ट्रेस क्या है यहाँ पे, इट इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म आ रहा है यहाँ पे, क्यों यूनिफॉर्म आ रहा है, क्योंकि थिकनेस इज वेरी 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 स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस। रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, थिकनेस इज वेरी स्मॉल, दैट इज वाई जो वेरिएशन है वो बहुत ही माइल्ड वेरिएशन है। द वेरिएशन इज वेरी माइल्ड, और इतना माइल्ड वेरिएशन को अज्यूम कर लिया जाता है एज अ यूनिफॉर्म वेरिएशन। दैट इज वाई यहाँ पे क्या किया गया, यूनिफॉर्म वेरिएशन ले लिया गया इन द केस ऑफ सर्क्यूलर ट्यूब। तो आप ये ध्यान रखेंगे, फॉर द केस ऑफ सर्क्यूलर ट्यूब शियर स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, ठीक है। ये डिफरेंट है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। बाकी सभी में क्या है, द वेरिएशन इज लीनियर, बट सर्क्यूलर ट्यूब के केस में क्या होता है, द वेरिएशन इज यूनिफॉर्म। सो दीज आर दी 4 सेक्शंस पॉसिबल है जो कि सर्क्यूलर में, उसके अलॉन्ग हमने देखा क्या, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन। नाउ प्लीज राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक। The next topic that we are going to discuss now is connections of shaft. Now in this topic what we are going to do is we will connect different shafts. हम अलग अलग shafts को connect करेंगे, although वो circular ही होगा, but किसी का डाया ज़्यादा हो सकता है, किसी का डाया कम हो सकता है, तो हम different shafts को connect करेंगे with each other. सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, हम पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू सी कि
आफ्टर द कनेक्शन क्या इफेक्ट होता है। एंड इफेक्ट्स में हम बेसिकली दो पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे। फर्स्ट वन इज टॉर्क एंड सेकेंड वन इज एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट कहने का मतलब ये है कि जब हम दो शाफ्ट को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल कनेक्ट कर रहे हैं या किसी और अरेंजमेंट में कनेक्ट कर रहे हैं, तो जो टॉर्क अप्लाई किया है वो टॉर्क किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्या दोनों मेंबर इक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क ले रहे हैं, या जो मेंबर में टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट इज इक्वल टू द टॉर्क अप्लाइड। और जो या तो फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों मेंबर जो टॉर्क ले रहे हैं, दोनों मेंबर या दो से ज्यादा मेंबर है, सभी मेंबर में जो टॉर्क आ रहा है उसका समेशन इज इक्वल टू द अप्लाइड टॉर्क है। तो हम उस चीज को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से डिफरेंट मेंबर्स में क्या हो रहा है, टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। सेकेंड चीज हम एनालाइज करेंगे कि किस टाइप से मेंबर में एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है। क्या जो एंगल ऑफ ट्विस्ट सभी मेंबर में सेम आ रहा है, या फिर एंगल ऑफ ट्विस्ट जो टोटल स्ट्रक्चर का है दैट इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल मेंबर के एंगल ऑफ ट्विस्ट का समेशन। तो हम क्या एनालाइज करेंगे, हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से टॉर्क का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और किस तरीके से एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है। ठीक है, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू एनालाइज टॉर्क and angle of twist. ठीक है, we are going to analyze what? We are going to analyze torque and angle of twist. Now the first case or the first arrangement which is possible, that is series connection. So I am considering the first type of arrangement, that is series connection. Now series connection of shaft में क्या होता है, series connection of shaft में टू शाफ्ट्स विल बी कनेक्टेड एंड टू एंड कनेक्शन रहता है सीरीज में। ठीक है, सो आई एम कंसिडरिंग टू शाफ्ट्स विच आर कनेक्टेड एंड टू एंड। नाउ दिस इज अ सीरीज कनेक्शन ऑफ शाफ्ट। इन दिस टू शाफ्ट नंबर 1 दैट इज ए बी शाफ्ट and shaft number 2 that is BC shaft, these two shafts are connected what, end to end। मतलब shaft AB का जो end है वो shaft BC के एक एंड से कनेक्टेड है। ठीक है, सो इसको क्या बोलते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन बोलते हैं। नाउ दिस असेंबली इज सब्जेक्टेड टू अ टॉर्क टी एट द फ्री एंड। ठीक है, इस असेंबली में क्या है, एक टॉर्क टी लगा दिया एट द फ्री एंड। नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज कि जब इस असेंबली के फ्री एंड पर टॉर्क टी लगाया है तो मेंबर 1 में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, मेंबर 2 में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, मेंबर 1 के एंड में दैट इज पॉइंट बी पे कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है, और मेंबर 2 के एंड पे दैट इज पॉइंट सी पर कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा है। नाउ सिंस दीज आर टू डिफरेंट शाफ्ट्स, तो इनका जो मटेरियल है, आई एम अज्यूमिंग कि मटेरियल भी डिफरेंट है, तो जी अलग अलग हो गया, क्रॉस सेक्शन तो दिख ही रहा है, तो इसका आईपी भी अलग अलग हो गया। सो शाफ्ट नंबर 1 का जो जी है दैट आई एम अज्यूमिंग एट G1 एंड शाफ्ट नंबर 2 का जो जी है दैट आई एम अज्यूमिंग एट G2। सिमिलरली शाफ्ट नंबर 1 का जो आईपी है दैट आई एम अज्यूमिंग एज IP1 एंड शाफ्ट नंबर 2 का जो आईपी है दैट आई एम अज्यूमिंग एज IP2। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट व्हाट, अबाउट टॉर्क, कि मेंबर 1 में कितना टॉर्क आ रहा है और मेंबर 2 में कितना टॉर्क आ रहा है। सो जब आपने शाफ्ट पे ये टॉर्क अप्लाई किया है टी, नाउ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ दिस टॉर्क टी क्या होगा, सपोर्ट पे एक रिएक्शन डेवलप होगा। कितना रिएक्शन डेवलप होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ दिस टॉर्क। दिस टॉर्क इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में सपोर्ट पे टॉर्क लग जाएगा। सो इफ आई अप्लाई अ टॉर्क एट दी सपोर्ट, तो सपोर्ट पे क्या लगेगा, इस टॉर्क टी के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ से आप देखेंगे तो दिस टॉर्क टी इज एक्टिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो सपोर्ट पे कैसा लगेगा टॉर्क टी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, यहाँ पे लग रहा था क्लॉकवाइज, तो सपोर्ट पे कैसा लग गया, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो टी टॉर्क के अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग गया, यहाँ पे सपोर्ट पे रिएक्शन लग गया, दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू टी। नाउ आई एम गोइंग टू सी कि मेंबर में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है, मेंबर्स में कितना टॉर्क डेवलप हो रहा है। सो इफ आई कंसिडर अ सेक्शन इन दी मेंबर 1 और यू कैन से AB मेंबर, सो this I am considering section, this is XX1। सो इस XX1 सेक्शन के करस्पॉन्डिंग आप देखिए कि या तो इसके राइट में देख लीजिए कितना टॉर्क आ रहा है, या तो इसके लेफ्ट में देख लीजिए कितना टॉर्क आ रहा है, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये सेक्शन पे कितना टॉर्क है। तो इस XX1 के अगर राइट में आप देखोगे तो इस XX1 के राइट में टॉर्क देखिए, कैसे देखेंगे, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो इसके राइट में देखिए, राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो राइट हैंड की फिंगर्स हो गई अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स द सेक्शन। तो इस XX सेक्शन में कितना
टॉर्क आ रहा है, अगर आप राइट से देख रहे हैं तो इट इज पॉजिटिव टी। सिमिलरली आप इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट से भी देख सकते हैं। एक्स एक्स सेक्शन के अगर लेफ्ट से देखोगे तो अगेन यूज राइट हैंड थंब रूल। दिस फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड को आप अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो फिंगर्स ऑफ राइट हैंड को अलाइन कर लिया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस सेक्शन, सो दैट मीन्स अगेन दिस इज अ पॉजिटिव टॉर्क। आप राइट से देखो या लेफ्ट से देखो आपको सेम ही टॉर्क मिलेगा। जैसे कि हम शेयर फोर्स में देखते थे, राइट से आप शेयर फोर्स कैलकुलेट करो या लेफ्ट से शेयर फोर्स कैलकुलेट करो, शेयर फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता था। सेम बेंडिंग मोमेंट के केस में आप राइट हैंड से बेंडिंग मोमेंट देखो या लेफ्ट हैंड से बेंडिंग मोमेंट देखो, कोई वैल्यूज में चेंज नहीं आता था। सेम यहाँ पे टॉर्क आपको कैलकुलेट करना है, राइट से कैलकुलेट करो या लेफ्ट से, यू विल गेट द सेम वैल्यू ऑफ टॉर्क। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव टॉर्क आ रहा है या नेगेटिव टॉर्क आ रहा है, कहने का मतलब ये है कि एक्स एक्स सेक्शन पे कितना टॉर्क आ गया, इक्वल्स टू टी। सिमिलरली अगर मैं देखूं इन दी मेंबर 2 दैट इज बीसी मेंबर में, अगर मैं देखूं कितना टॉर्क आ रहा है, सो आई एम कंसिडरिंग अ सेक्शन XX2 इन दी मेंबर बीसी। बीसी मेंबर में मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेक्शन लिया है दिस XX2। अगेन वी कैन एनालाइज कि इस XX2 सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा है, राइट से भी एनालाइज कर सकते हैं, लेफ्ट से भी एनालाइज कर सकते हैं। तो अगर आप राइट से एनालाइज करोगे तो ये देखिए दिस फिंगर्स को मैंने राइट हैंड की फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी सेक्शन, तो पॉजिटिव टी टॉर्क आ रहा है। लेफ्ट में देखोगे इस एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में देखोगे अगेन राइट हैंड के फिंगर्स को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, थंब का पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स दी सेक्शन। तो लेफ्ट से देखा तो भी प्लस टी आया, राइट से देखा तो भी प्लस टी आया, मतलब XX2 सेक्शन पे भी कितना टॉर्क आ रहा है, इट इज टी। दैट मीन्स अगर आप सीरीज कनेक्शन में शाफ्ट को ज्वाइन करेंगे सीरीज कनेक्शन में, तो जो टॉर्क अप्लाई किया है वही टॉर्क क्या होगा, पूरे के पूरे स्ट्रक्चर में आएगा। दैट इज मेंबर 1 में भी उतना ही टॉर्क आ रहा है, मेंबर 2 में भी उतना ही टॉर्क आ रहा है, और 3 4 5 6 अगर और नंबर ऑफ मेंबर्स होते तो सब में उतना ही टॉर्क आता है जितना टॉर्क आपने अप्लाई किया। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट that T1 is equals to T2 is equals to how much T। ठीक है, क्या आ गया conclusion that T1 is equals to T2 is equals to T। now this is valid for series connection, this is for series connection। so series connection के लिए हमने क्या टॉर्क को एनालाइज कर लिया, that T1 is equals to T2 is equals to how much T। now we will analyze what, now we will analyze angle of twist। अब हम angle of twist को एनालाइज करेंगे। सो नेक्स्ट वी विल एनालाइज एंगल ऑफ ट्विस्ट। देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट, देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट, अगर मैं इन दी पोर्शन ए बी पोर्शन में अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट को एनालाइज करूं, सो आई कैन राइट व्हाट थीटा ए बी। नाउ एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में हमने बात की थी दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट इज प्रोपोर्शनल टू एल। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। बेसिकली थीटा ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है the change in angle of twist over the length what, over the length AB। so theta AB क्या represent कर रहा है, theta AB is nothing but change in angle of twist over the length AB। मतलब AB लेंथ में कितना एंगल ऑफ ट्विस्ट में चेंज आ रहा है, इसको हम ये भी बोलते हैं that change in angle of twist at B with reference to A। ठीक है, सो इसको ये भी बोला जाता है दैट चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी विथ रेफरेंस टू पॉइंट ए। सो थीटा ए बी क्या है, थीटा ए बी इज, थीटा ए बी क्या है, थीटा ए बी इज चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। दैट मीन्स दिस इज नथिंग बट थीटा बी माइनस थीटा ए। ठीक है, ये क्या है, थीटा ए बी क्या है, इट इज नथिंग बट थीटा बी माइनस थीटा ए। नाउ यहाँ पे देखिए थीटा ए, व्हाट इज पॉइंट ए, पॉइंट ए इज अ फिक्स सपोर्ट। सो पॉइंट ए क्या है, पॉइंट ए इज अ फिक्स सपोर्ट। सो सिंस ए इज फिक्स सपोर्ट, सो फिक्स सपोर्ट पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 0। ठीक है, फिक्स एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कितना होगा, इट विल बी इक्वल्स टू 0। सो फिक्स्ड एंड पे दिस एंगल ऑफ ट्विस्ट इज हाउ मच, इट इज इक्वल्स टू 0। सो थीटा ए बी कितना आ गया, theta AB is equals to how much, theta B। so if you calculate change in angle of twist at any point with respect to fixed support, then that is called as absolute angle of twist।
सो यहाँ पे जो थीटा बी है, दिस थीटा बी इज व्हाट, दिस थीटा बी वी आर कैलकुलेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स सपोर्ट। तो थीटा ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी। सो थीटा ए बी इज नथिंग, थीटा ए बी इज एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी। अभी इसके बाद हम बात करेंगे रिलेटिव के बारे में भी, पर आप एब्सोल्यूट पहले समझिए। सो थीटा ए बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा ए बी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, पॉइंट ए। ठीक है, सो चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, एंड पॉइंट ए इज अ फिक्स सपोर्ट, दैट मींस पॉइंट ए पे क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट 0 है। तो थीटा ए बी किसके बराबर हो गया, थीटा बी के बराबर, दैट मींस थीटा बी इज व्हाट, थीटा बी इज एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B, that means theta AB क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट B। नाउ दिस थीटा के लिए हमने एक इक्वेशन लिखा था, दैट थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। देखा था हमने थीटा के लिए ये इक्वेशन, थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज change in angle of twist over the length L। थीटा इज व्हाट, थीटा इज चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट ओवर द लेंथ L। और इस इक्वेशन को यूज करने की 3 कंडीशंस थी। क्या 3 कंडीशन थी, सबसे पहले दिस टॉर्क T शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ L। जिस L में आप ये इक्वेशन लगा रहे हो उस L में क्या होना चाहिए, टॉर्क कांस्टेंट होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, द मेंबर शुड बी प्रिज्मेटिक। इस लेंथ के लिए, L लेंथ के लिए मेंबर शुड बी प्रिज्मेटिक, दैट मीन्स दिस IP शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। इसमें क्या होना चाहिए, IP कांस्टेंट होना चाहिए, G कांस्टेंट होना चाहिए, T कांस्टेंट होना चाहिए। अगर इसका वैल्यू चेंज हो रहा है, TIP या G का वैल्यू चेंज हो रहा है इन दी लेंथ L, देन यू कैन नॉट अप्लाई थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। नाउ इन दी पोर्शन ए बी देखिए, इन दी पोर्शन ए बी क्या यहाँ पे T चेंज हो रहा है, नहीं, टॉर्क इज कांस्टेंट। क्या इस पोर्शन में IP चेंज हो रहा है, नहीं, इन दी पोर्शन ए बी IP इज कांस्टेंट। ठीक है, जैसे ही B के बाद जाओगे वैसे IP चेंज हो जाएगा, बट ए बी पोर्शन में IP क्या है, कांस्टेंट है, G भी कांस्टेंट है। सो वी कैन इजीली अप्लाई दिस इक्वेशन फॉर कैलकुलेटिंग थीटा ए बी। सो थीटा ए बी इज इक्वल्स टू TAB इंटू LAB अपॉन GAB इंटू IP ऑफ AB। सो थीटा ए बी क्या आ जाएगा, इट इज T इंटू, देखिए ए बी पोर्शन में कितना टॉर्क है, T, तो वी विल राइट T। L कितना, इट इज L1 अपॉन G1 इंटू IP1। ये क्या आ गया, ये आ गया एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, पॉइंट ए। क्लियर है। नाउ अब देखेंगे हम थीटा BC। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट थीटा BC। नाउ थीटा BC क्या है, थीटा BC इज चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B। चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, दैट इज थीटा BC इज नथिंग बट इट इज थीटा C माइनस थीटा B। ठीक है, थीटा BC क्या, इट इज नथिंग बट थीटा C माइनस थीटा B। नाउ दिस थीटा B इज नॉट जीरो, थीटा B इज नॉट जीरो बिकॉज B इज नॉट अ फिक्स्ड एंड। दैट मीन्स यहाँ से जो आपको थीटा BC मिलेगा, दिस थीटा BC इज नॉट एब्सोल्यूट, बिकॉज यहाँ ये थीटा BC आप किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करें, दिस इज चेंज इन एंगल एट पॉइंट C विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट B, एंड पॉइंट B इज नॉट अ फिक्स सपोर्ट। दैट मीन्स यहाँ पे इस इक्वेशन से आपको जो थीटा BC मिलेगा, दिस थीटा BC इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एब्सोल्यूट angle of twist at point C. So this theta BC is not absolute angle of twist at C. This is not absolute angle. Whereas this theta BC is relative. It is relative angle of twist at C with respect to what? With respect to B. समझ में आया। तो अगर एक एंड फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड के रेफरेंस में आप अगर थीटा कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो क्या देगा आपको, एब्सोल्यूट देगा, एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट। और अगर किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप थीटा कैलकुलेट कर रहे हो, पॉइंट खुद भी रोटेट हो रहा है, तो वो आपको क्या देगा, थीटा जो देगा वो रिलेटिव देगा। एक बात आप यहाँ पे समझिए, दिस थीटा सी, दिस इज एब्सोल्यूट, ठीक है, ये एब्सोल्यूट है, बट थीटा BC क्या है, चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट एट C विथ रिस्पेक्ट टू B। तो थीटा BC आपको एब्सोल्यूट थीटा नहीं दे रहे। क्लियर है। तो यहाँ से अगर थीटा BC आप कैलकुलेट करेंगे तो बताइए क्या आप यहाँ पे ये इक्वेशन लगा सकते हैं, थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP। यू विल से यस, लगा सकते हैं, क्योंकि BC पोर्शन में देखिए क्या, BC पोर्शन में
टॉर्क चेंज हो रहा है, यू विल से नहीं टॉर्क कांस्टेंट है। क्या आईपी चेंज हो रहा है इस पोर्शन में, यू विल से नहीं आईपी कांस्टेंट है। क्या जी चेंज हो रहा है, यू विल से नहीं जी कांस्टेंट है। सो यू कैन अप्लाई थीटा बीसी के लिए इक्वेशन दैट थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी। सो आई विल राइट टी इन द पोर्शन बी सी इंटू एल बी सी अपॉन जी बी सी इंटू आई पी ऑफ बी सी। सो थीटा बी सी कितना आ गया, इट इज टी इंटू एल टू अपॉन जी टू इंटू आई पी टू। ठीक है, समझ में आया। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट थीटा एट पॉइंट सी, अगर एब्सोल्यूट थीटा आपको कैलकुलेट करना है एट पॉइंट सी, देन यू हैव टू कैलकुलेट थीटा ऑफ पॉइंट सी विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए, दैट इज थीटा ए सी। अगर आपको पॉइंट सी पे एब्सोल्यूट एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको पॉइंट सी पे एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो फॉर दिस आई विल राइट दिस इज व्हाट, दिस इज थीटा सी माइनस थीटा ए, दिस इज नथिंग बट थीटा सी माइनस थीटा ए। थीटा ए सी क्या हो गया, इट इज थीटा सी माइनस थीटा ए। नाउ इन दिस केस आई कैन नॉट राइट थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी। थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि ए से सी तक जाने में यहाँ पे क्या है, जी चेंज हो रहा है, आई पी चेंज हो रहा है। ठीक है, सो आई कैन नॉट राइट थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा रहा हूँ मैं, देखिए किस तरीके से, दैट थीटा ए सी इज इक्वल टू थीटा सी माइनस थीटा। इसमें क्या कर रहा हूँ मैं, थीटा बी को ऐड कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो थीटा सी माइनस थीटा बी प्लस थीटा बी माइनस थीटा ए, दिस इज इक्वल टू व्हाट, थीटा ए सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, सिर्फ मैथमेटिक्स लगाए, थीटा बी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट दी सेम रिजल्ट। ठीक है, थीटा बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस थीटा बी माइनस थीटा बी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो यहाँ से आई कैन राइट थीटा ए सी। अब ये देखिए थीटा सी माइनस थीटा बी, दिस इज नथिंग बट थीटा बी सी। थीटा बी माइनस थीटा ए, दिस इज नथिंग बट थीटा ए बी। तो थीटा ए सी इज व्हाट, थीटा ए सी इज थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। Now this is valid only and only and only and only for series connection. ठीक है, this is valid only and only for series connection. ये equation that theta AC is equals to theta AB plus theta BC. That means from the initial point to the final point, अगर आपको change in angle of twist निकालना है, या तो फिर आपको फाइनल पॉइंट पे, फाइनल पॉइंट मतलब फ्री एंड पे अगर आपको एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना है एब्सोल्यूट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे तो 2 मेंबर्स आ रहे हैं, अगर 3 होते, 4 होते, 5 होते, तो सभी मेंबर में जो चेंज इन एंगल ऑफ ट्विस्ट आएगा उसको आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। दैट इज थीटा एट पॉइंट सी इज इक्वल टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, फॉर सीरीज कनेक्शन T1 is equals to T2 is equals to T and theta AC is equals to theta AB plus theta BC। ठीक है, theta AC is equals to theta AB plus theta BC। ये दो आपके कंक्लूजन्स है जो आपको याद रखना है फॉर सीरीज कनेक्शन, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 कंक्लूजन आपको याद रखना है फॉर सीरीज कनेक्शन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट इज parallel connection। तो केस 2 पैरेलल कनेक्शन। नाउ पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में द मेंबर्स आर जॉइंट, द शाफ्ट्स आर जॉइंट फेस टू फेस। शाफ्ट को कैसे जॉइन किया जाता है, फेस टू फेस, एंड देयर विल बी अ परफेक्ट बॉन्ड बिटवीन द 2 मेंबर्स एट द फेसेस। ठीक है, तो पैरेलल हमने अभी सीरीज कनेक्शन में क्या कैसे ज्वाइन किया था, मेंबर्स को आर जॉइंट एंड टू एंड। Whereas parallel connection में क्या करते हैं, the members will be joined face to face और there will be a perfect bond। ठीक है, जो 2 members को आप ज्वाइन करोगे उसमें क्या होगा, फेस पे there will be a perfect bond। तो देखते हैं किस तरीके से होता है parallel connection। Now this is a shaft, this is a parallel connection of shaft। In this 2 shafts are joined face to face। 2 shaft को कैसे ज्वाइन किया हमने, फेस टू फेस ज्वाइन किया 2 शाफ्ट को। इनर शाफ्ट इज शाफ्ट नंबर 1 एंड आउटर शाफ्ट इज शाफ्ट नंबर 2। तो एक शाफ्ट के ऊपर क्या किया, दूसरे शाफ्ट को हमने इंसर्ट कर दिया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, एंड देयर इज द परफेक्ट बॉन्ड। दोनों का लेंथ कितना होगा, दोनों का लेंथ विल बी इक्वल। सो लेंथ ऑफ शाफ्ट 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ शाफ्ट 2 इज इक्वल टू L। ठीक है, शाफ्ट 1
का IP I am considering it is IP1, G I am considering it is G1, shaft 2 का IP I am considering IP2 and G I am considering G2. Now this assembly is subjected to a torque T like this. इस assembly पे हमने एक torque T लगाया like this. This assembly is subjected to a torque T. नाउ आप देखिए, सबसे पहले हम टॉर्क के बारे में एनालाइज करते हैं. क्या शाफ्ट 1 एंड शाफ्ट 2, मेंबर 1 मेंबर 2 दोनों में सेम टॉर्क आएगा इक्वल्स टू टॉर्क टी, क्या अलग अलग टॉर्क आएगा? तो यहाँ पे हम अगेन सेक्शन बना के देखते हैं. आई एम मेकिंग अ सेक्शन XX हियर. सो दिस इज अ सेक्शन XX. आप XX सेक्शन पे देखिए कितना टॉर्क आ रहा है. आप XX सेक्शन पे देखो कितना टॉर्क आ रहा है. सिंस यहाँ पे हमने क्लॉकवाइज टॉर्क लगाया है, दिस इज क्लॉकवाइज टॉर्क, तो फिक्स्ड एंड पे कैसा रिएक्शन आएगा? एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगेगा. सो रिएक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस. फिक्स्ड एंड पे कैसा रिएक्शन आ गया? एंटी क्लॉकवाइज. नाउ इस XX सेक्शन पे देख लीजिए. आप राइट से भी देख सकते हैं, लेफ्ट से भी देख सकते हैं. राइट से देखोगे, इस XX सेक्शन के राइट से देखोगे तो राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए. फिंगर्स को अलाइन करें इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क. थंब का पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स द सेक्शन, तो पॉजिटिव टॉर्क आ रहा है एट द सेक्शन. लेफ्ट से देखेंगे तो फिंगर्स को अलाइन कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, और थंब देखिए कहाँ आ रहा है, थंब इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेक्शन, तो भी पॉजिटिव टी टॉर्क आ रहा है. दैट मीन्स इस सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा है? प्लस टी. बट आप डिफरेंस देखिए दोनों कनेक्शंस में. क्या डिफरेंस था? जब पहले हमने कनेक्शन किया था सीरीज कनेक्शन, तो यहाँ पे जो XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा था? XX1 पे टी टॉर्क आ रहा था. बट वो टी टॉर्क कौन रजिस्ट कर रहा था? सिर्फ मटेरियल 1 रजिस्ट कर रहा था. ठीक है, XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा था? टी, एंड दैट टी टॉर्क वाज रजिस्टर्ड बाय ओनली मटेरियल 1. XX2 पे कितना टॉर्क आ रहा था? अगेन टी, एंड वो टॉर्क कौन रजिस्ट कर रहा था? अगेन सिर्फ और सिर्फ मटेरियल 2 रजिस्ट कर रहा था. बट हियर इन दिस केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन क्या हो रहा है? इस केस में इस XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ रहा है? टी. बट ये जो टी टॉर्क है वो मटेरियल 1 एंड मटेरियल 2 दोनों मटेरियल क्या करेंगे? मिलकर रजिस्ट करेंगे. ठीक है. सो आई एम अज्यूमिंग कि मटेरियल 1 में कितना टॉर्क आ रहा है? T1, एंड मटेरियल 2 में टॉर्क आ रहा है T2. सो हियर आई हैव टू राइट दैट T1 प्लस T2 इज हाउ मच? इट इज इक्वल्स टू T. ठीक है. सो दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन. फॉर पैरेलल कनेक्शन T1 प्लस T2 इज हाउ मच? इक्वल्स टू T. दिस इज फॉर पैरेलल कनेक्शन. ठीक है. यहाँ पे तो दो ही मेंबर है. इफ देयर विल बी मोर नंबर ऑफ मेंबर्स T1 T2 T3 T4 गोइंग अप टू Tn, तो सबका समेशन करना पड़ेगा. दैट वुड बी इक्वल्स टू द अप्लाइड टॉर्क T. नाउ हियर व्हाट इज T1? T1 इज टॉर्क रजिस्टर्ड बाय मटेरियल 1 and T2 is torque registered by material 2. T1 is the torque registered by material 1 and T2 is the torque registered by material 2. So for parallel connection T1 plus T2 is how much? It is equals to T. Now we will discuss about angle of twist. ठीक है. अब हम किसके बारे में एनालिसिस करेंगे? अबाउट एंगल ऑफ ट्विस्ट. नाउ वी नो दैट एंगल ऑफ ट्विस्ट किस पे डिपेंड करता है? एंगल ऑफ ट्विस्ट डिपेंड्स ऑन L. सो यहाँ पे क्या है? एट द क्रॉस सेक्शन दोनों में मटेरियल के लिए क्या है? लेंथ इज सेम. एट द क्रॉस सेक्शन दोनों मटेरियल के लिए क्या लेंथ सेम है. सो इन दैट केस क्या होगा? θ1 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? θ1 विल बी इक्वल्स टू θ2. यहाँ पे देखिए एंगल ऑफ ट्विस्ट किस पे डिपेंड करता है? L पे. हमने देखा था एंगल ऑफ ट्विस्ट L पे डिपेंड करता है. तो यहाँ पे एट दी क्रॉस सेक्शन इफ आई कैलकुलेट किसी भी क्रॉस सेक्शन पे XX पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो XX पे भी क्या है? दोनों मटेरियल का लेंथ सेम है फ्रॉम द फिक्स्ड एंड. सिमिलरली अगर मैं फ्री एंड पे कैलकुलेट करूँ तो फ्री एंड पे भी दोनों मटेरियल का जो लेंथ है दैट इज सेम L. सो θ1 विल बी इक्वल्स टू हाउ मच? θ2. एंड फॉर दिस थीटा आप बताइए क्या मैं ये लिख सकता हूँ? थीटा इज इक्वल्स टू TL अपॉन GIP. सो आप देखिए θ1. नाउ फॉर दी मटेरियल 1 के लिए देखिए क्या इसमें टॉर्क चेंज हो रहा है? अलोंग द लेंथ टॉर्क चेंज नहीं हो रहा है. अलोंग द लेंथ द टॉर्क इज T1. क्या अलोंग द लेंथ IP चेंज हो रहा है? नो, IP भी चेंज नहीं हो रहा है. अलोंग द लेंथ सेम है. क्या G1 चेंज हो रहा है? नहीं, G1 भी चेंज नहीं हो रहा है. सिमिलरली फॉर मटेरियल 2 अलोंग द लेंथ टॉर्क चेंज नहीं हो रहा है, IP चेंज नहीं हो रहा है, G2 चेंज नहीं हो रहा है. सो
यू कैन अप्लाई व्हाट, यू कैन अप्लाई थीटा इज इक्वल टू टी एल अपॉन जी आई पी. तो थीटा वन क्या हो गया, थीटा वन विल बी टी वन इंटू एल अपॉन जी वन आई पी वन. दिस इज इक्वल टू थीटा टू इज टी टू एल अपॉन जी टू इंटू आई पी टू. सो अगेन दिस इज वैलिड फॉर पैरेलल कनेक्शन. सो कंक्लूजन हम लिख सकते हैं, कंक्लूजन फॉर पैरेलल कनेक्शन T1 plus T2 is equals to T and theta 1 is equals to how much, theta 2. These are what, these are conclusion for parallel connection. वहाँ पे क्या था सीरीज कनेक्शन में, T1 is equals to T2 था and theta is equals to theta 1 plus theta 2 था. तो आप ये याद रखेंगे. सेम है जैसा हमने एक्सियल मेंबर के केस में देखा था, जब हमने एक्सियल मेंबर को कनेक्ट किया था सीरीज में, तो एक्सियल मेंबर में जो फोर्स था, एक्सियल फोर्स, दैट वाज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. तो फोर्स क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है. सीरीज कनेक्शन में फोर्स इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. बट जो डिफ्लेक्शन आ रहा था, डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन इन मेंबर 1 प्लस डिफ्लेक्शन इन मेंबर 2. तो टोटल डिफ्लेक्शन कितना था सीरीज कनेक्शन में इन द केस ऑफ एक्सियल मेंबर, total deflection is equals to deflection in member 1 plus deflection in member 2. सेम पैरेलल कनेक्शन के केस में भी था. फॉर द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन अगर हम एक्सियल मेंबर की बात करें, तो एक्सियल मेंबर में जो लोड लगा रहे थे, वो लोड क्या हो रहा था, दोनों मटेरियल शेयर कर रहे थे. इन द केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन जो आप एक्सियल फोर्स लगा रहे थे, वो एक्सियल फोर्स क्या हो रहा था, दोनों मटेरियल शेयर कर रहे थे. एंड देयर वाज अ परफेक्ट बॉन्ड फेस टू फेस. उसकी वजह से क्या हो रहा था, दोनों मटेरियल में डिफ्लेक्शन सेम आ रहा था. तो यहाँ पे भी क्या है, डिफ्लेक्शन सेम आ रहा है. नाउ अब यहाँ पे देखिए, देयर इज अ स्पेशल केस. नाउ दिस इज अ स्पेशल केस. देखिए इन दिस टू शाफ्ट आर कनेक्टेड लाइक दिस, और दोनों क्या है, फ्रॉम दी एंड्स इज द स्ट्रक्चर इज फिक्स फ्रॉम बोथ दी एंड्स. अब आपको बताना है ये सीरीज कनेक्शन है या पैरेलल कनेक्शन है. आपको बताना है या क्या ये सीरीज है या ये पैरेलल है. सो देखिए, कभी भी आपको कोई स्ट्रक्चर मिलता है तो आप उसको बाइफरकेट करने की कोशिश मत करिए कि या तो सीरीज में बाइफरकेट कर दे या तो पैरेलल में बाइफरकेट कर दे. ऐसा मत करिए. आप उस स्ट्रक्चर के लिए कॉम्पेटिबिलिटी समझिए. ठीक है. नाउ दिस इज नीदर सीरीज नोर पैरेलल. आप इसको ना सीरीज बोल सकते ना पैरेलल बोल सकते. देखिए सीरीज के केस में क्या रिजल्ट था, सीरीज के केस में रिजल्ट था कि जो लोड है, दैट लोड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द लेंथ. ठीक है, लोड क्या होना चाहिए, लोड कांस्टेंट होना चाहिए थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर. मतलब दोनों मेंबर या जितने भी मेंबर है सभी में लोड क्या आएगा, सेम आएगा, इक्वल्स टू द अप्लाइड लोड. और डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर इज डिफ्लेक्शन इन मेंबर 1 प्लस डिफ्लेक्शन इन मेंबर 2. पैरेलल के लिए क्या रिजल्ट था, दैट टोटल लोड ऑन द स्ट्रक्चर क्या होगा, वो शेयर होगा बिटवीन द मटेरियल्स. एंड डिफ्लेक्शन क्या होगा, सभी मेंबर्स में डिफ्लेक्शन सेम आएगा. बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझने की कोशिश करिए. नाउ अगर इस स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पे टॉर्क टी अप्लाई किया है, तो इस टी की वजह से क्या होगा, रिएक्शंस आएगी एट दी सपोर्ट. तो यहाँ पे एक रिएक्शन आया एंड यहाँ पे एक रिएक्शन आया. ठीक है, ये टी कैसा लग रहा था, क्लॉकवाइज. तो ये रिएक्शन कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, ये वाली रिएक्शन भी कैसी आई, एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. सो अप्लाइड टॉर्क वाज क्लॉकवाइज, तो रिएक्शन कैसी आएगी, एंटी क्लॉकवाइज. दोनों रिएक्शन कैसे आई, एंटी क्लॉकवाइज. नाउ अब आप बताइए, अगर मुझे इसको सीरीज कनेक्शन मानना है, अगर आप इसको सीरीज कनेक्शन मानोगे तो मेंबर 1 में कितना टॉर्क आना चाहिए, टी. मेंबर 2 में कितना टॉर्क आना चाहिए, टी. मेंबर 1 में भी टी टॉर्क आना चाहिए, मेंबर 2 में भी टी टॉर्क आना चाहिए. क्या ये पॉसिबल है, यू विल से नो, ये पॉसिबल नहीं. आप यहाँ पे सेक्शन बना के देख लीजिए. इफ आई कंसिडर अ सेक्शन XX इन दी पोर्शन 1, मेंबर 1 में अगर मैं सेक्शन XX बनाऊं, दिस इज XX सेक्शन, तो आप बताइए कितना इसमें टॉर्क आएगा, XX पे कितना टॉर्क आएगा. सपोज हियर रिएक्शन इज T है, हियर रिएक्शन इज T भी. तो XX के लेफ्ट में देख लीजिए, लेफ्ट में देखोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा. तो लेफ्ट में देखा तो कितना टॉर्क लग रहा है, TA कैसे पॉइंट कर रहा है, टुवर्ड्स दी सेक्शन. तो TA इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दी सेक्शन, दैट मीन्स यहाँ पे प्लस T आएगा. तो XX सेक्शन पे कितना टॉर्क आ गया, TA पॉजिटिव. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे पोर्शन 2 में एक सेक्शन लूँ, दिस इज XX2, यहाँ पे टीबी टॉर्क को हम प्रॉपरली बता देते हैं, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा. तो टीबी टॉर्क कैसा लग रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है. देखिए ये दिस इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, वहाँ से भी लगा सकते थे बट उससे आपको कन्फ्यूजन हो रहा है.
तो यहाँ पे देखिए टीबी इस x2 सेक्शन के राइट में देखिए कितना टॉर्क आ रहा है, x2 सेक्शन के राइट में टीबी टॉर्क आ रहा है. तो टीबी टॉर्क फिंगर को अलाइन किया इन द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, इट इज पॉइंटिंग आउटसाइड दिस सेक्शन. तो यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ टीबी टॉर्क आ रहा है. यहाँ पे कितना टॉर्क आ रहा था, प्लस ऑफ टी ए. एक्स पे x1 पे प्लस टी ए आ रहा था, x2 पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ टीबी टॉर्क आ रहा है. तो पॉजिटिव नेगेटिव साइन को अभी छोड़ भी देते हैं, तो इस पे क्या आ रहा है, टी ए टॉर्क आ रहा है, इस पे टॉर्क आ रहा है टीबी. तो क्या टी ए इक्वल्स टू टी बी इक्वल्स टू टी पॉसिबल है? यू कैन से नो. अगर टी ए को टी के बराबर कर दिया एंड टी बी को भी टी के बराबर कर दिया तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाएगा. क्लॉकवाइज टॉर्क इज टी एंड इट क्लॉकवाइज टॉर्क इज 2t. सो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा स्ट्रक्चर पे, नेट टॉर्क हो जाएगा t. सो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, अनस्टेबल. सो अगर मेंबर 1 में टॉर्क आ रहा है T1, मेंबर 2 में टॉर्क आ रहा है T2, सो क्या कॉम्पेटेबिलिटी बनेगी, दैट T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू व्हाट, T. सो दैट मीन्स दिस इज नॉट अ सीरीज कनेक्शन. इस इक्वेशन से पता चल गया कि ये सीरीज कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T होता है. सो ये सीरीज कनेक्शन तो नहीं है. नाउ अब इसको देखते हैं फॉर एंगल ऑफ ट्विस्ट. एंगल ऑफ ट्विस्ट के लिए देखते हैं. नाउ बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड. यहाँ पे देखिए बोथ द एंड्स आर फिक्स्ड, दैट इज सो थीटा ए सी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो थीटा ए सी इज वॉट, थीटा सी माइनस थीटा ए. थीटा ए सी क्या है, थीटा ए सी इज नथिंग, इट इज थीटा सी माइनस थीटा ए. सो यहाँ पे देखिए पॉइंट सी इज अ फिक्स सपोर्ट, point A is also a fixed support. That means theta AC is how much, it is equals to 0. So theta AC for this structure is 0. But अगर मैं इसमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाऊं, so I can write it is theta C minus theta A. अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें theta B को ऐड कर रहा हूँ और theta B को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. So I am writing this as theta C minus theta B plus theta B minus theta A. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डैट थीटा ए सी दिस इज इक्वल टू थीटा बी सी प्लस थीटा ए बी, और आई कैन राइट थीटा ए सी इज इक्वल टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0. नाउ अब यहाँ पे देखिए ये तो रिजल्ट किसका आया था, दिस रिजल्ट वाज रिजल्ट ऑफ पैरेलल कनेक्शन. ये किसका रिजल्ट आया था, पैरेलल कनेक्शन का रिजल्ट आया था. नाउ ये रिजल्ट देखिए, क्या ये पैरेलल कनेक्शन का रिजल्ट है. पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, हर मेंबर में एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम आता है, हर मेंबर में डिफॉर्मेशन सेम आता है. बट यहाँ पे देखिए थीटा ए सी इज इक्वल टू थीटा ए बी प्लस थीटा बी सी, ये किसका रिजल्ट है, सीरीज का रिजल्ट है. कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी स्ट्रक्चर को सीरीज और पैरेलल में बाइफर्केट करने की कोशिश मत कीजिए. आपको पता है कि क्या प्रोसीजर है. सबसे पहले सेक्शन लेके आप देख लीजिए कि कितना टॉर्क आ रहा है. सो टॉर्क का इक्वेशन लिख लीजिए एक, और एक थीटा का इक्वेशन लिख लीजिए, यू कैन इजीली गेट द आंसर. ठीक है, समझ में आया. टॉर्क का एक इक्वेशन लिख लो, एक आप थीटा का इक्वेशन लिख लो. नाउ ये जो अभी तक हमने 3 केसेस पढ़े, अगर आप इनको याद रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई ट्रिक से याद रह सके आपको, तो आप इजीली आप याद रख सकते हैं. देखिए सो आप इजीली याद रख सकते हैं बाय कंपेयरिंग इट टू कनेक्शन इन स्प्रिंग. तो जो फर्स्ट केस देखा था दैट वाज व्हाट, दैट वाज अ सीरीज कनेक्शन. तो अगर हम 2 स्प्रिंग्स को सीरीज में लगाएंगे तो देखिए इन बोथ द स्प्रिंग कितना लोड होगा, लोड इन बोथ द स्प्रिंग, इसमें पी लोड आएगा स्प्रिंग नंबर 1 में, स्प्रिंग नंबर 2 में भी पी लोड आएगा. तो दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, इक्वल लोड आएगा जितना लोड अप्लाई किया है. सेम यहाँ पे भी हो रहा था, सीरीज कनेक्शन में जितना टॉर्क आपने अप्लाई किया था वो टॉर्क दोनों मटेरियल में सेम टॉर्क आ रहा था, इक्वल टू अप्लाइड टॉर्क. टोटल डिफ्लेक्शन कितना होगा, टोटल डिफ्लेक्शन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू टोटल डिफ्लेक्शन. सेम यहाँ पे भी हो रहा था, मेंबर 1 में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा था प्लस मेंबर 2 में जो एंगल ऑफ ट्विस्ट आ रहा था, दैट वाज द टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट इन दिस स्ट्रक्चर. ठीक है, सेम आप रिजल्ट याद रख सकते हैं फॉर पैरेलल कनेक्शन. स्प्रिंग के केस में पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जो एफ फोर्स आप अप्लाई करते हो वो एफ फोर्स दोनों स्प्रिंग्स मिलके शेयर करते हैं. सो दिस member 1 will take F1 force and member 2 will take what, F2 force. So फर्स्ट स्प्रिंग में आ गया F1 फोर्स, सेकेंड स्प्रिंग में आ गया F2 फोर्स. सेम हो रहा था इन द केस ऑफ कनेक्शन ऑफ शाफ्ट. जब शाफ्ट को पैरेलल कनेक्ट किया तो जो टॉर्क आप T लगा रहे थे उसका T1 पोर्शन कौन ले रहा था, मटेरियल 1, T2 पोर्शन कौन ले रहा था, मटेरियल 2. एंड
इन द केस ऑफ स्प्रिंग, जब दो स्प्रिंग्स को आपने पैरेलली कनेक्ट किया है तो दोनों स्प्रिंग में क्या होगा, सेम डिफ्लेक्शन होगा, डेल्टा 1 विल बी इक्वल टू हाउ मच, डेल्टा 2। सेम हो रहा था इन द केस ऑफ व्हाट, इन द केस ऑफ शाफ्ट में भी क्या हो रहा था, एंगल ऑफ ट्विस्ट इन मटेरियल 1 विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट इन मटेरियल 2। तो ये पैरेलल कनेक्शन जो स्प्रिंग का है दैट इज सिमिलर टू पैरेलल कनेक्शन ऑफ शाफ्ट। अब जो हमने थर्ड केस देखा था, थर्ड केस दैट इज अ स्पेशल केस, उसको आप इस तरीके से देख सकते हैं, इस तरीके से। इसमें क्या है, दो स्प्रिंग्स को कनेक्ट किया हुआ है हमने एंड इनके सेंटर में हमने फोर्स लगा दिया। उसमें भी ऐसा ही था, दो शाफ्ट को कनेक्ट किया था, दोनों शाफ्ट वर बिटवीन द फिक्स सपोर्ट एंड सेंटर में हमने क्या, जंक्शन पे टॉर्क अप्लाई कर दिया था। नाउ इन दिस केस क्या होगा, जो स्प्रिंग नंबर 1 है उसमें कितना फोर्स आएगा, P1, स्प्रिंग नंबर 2 में कितना फोर्स आएगा, P2। दैट मीन्स दोनों स्प्रिंग क्या करेगी, दोनों स्प्रिंग इस P फोर्स को मिलकर रजिस्ट करेगी, दोनों स्प्रिंग। सेम शाफ्ट के केस में भी हो रहा था, दोनों शाफ्ट क्या है, टॉर्क T को मिलकर रजिस्ट कर रहे थे। सेकेंड थिंग क्या हो रहा था यहाँ पे, जितना स्प्रिंग नंबर 1 में इलोंगेशन होगा उतना ही स्प्रिंग नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्शन होगा। स्प्रिंग नंबर 1 में जितना एलोंगेशन होगा उतना ही स्प्रिंग नंबर 2 में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। सो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 विल बी 0। सेम कहाँ पे हो रहा था, सेम हो रहा था इन द केस ऑफ दिस स्पेशल केस। स्पेशल केस में भी क्या हो रहा था, सेम हो रहा था, दैट थीटा इन द पोर्शन ए सी will be equals to theta in the portion AB plus theta in the portion BC. This is equals to 0. Theta of the portion AC is equals to theta AB plus theta BC and this is equals to 0. इसका मतलब क्या है, theta of AB is equals to minus of theta of BC. theta AB and theta BC दोनों इक्वल है बट ऑपोजिट नेचर के। यहाँ पे भी देखिए इन द केस ऑफ स्प्रिंग भी देखिए क्या है, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 प्लस, पर दोनों कैसे, ऑपोजिट नेचर के। स्प्रिंग नंबर 1 में टेंशन आएगा तो स्प्रिंग नंबर 2 में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्शन आएगा। जितना स्प्रिंग नंबर 1 में टेंशन आएगा उतना ही स्प्रिंग नंबर 2 में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। सेम यहाँ पे भी वही है, दैट थीटा ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ थीटा बी सी। दैट मीन्स जितना ए बी में क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा उतना बी सी में एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। अब इसको आप समझिए, ये चीज लास्ट समझना जरूरी है। देखिए दिस इज दी शाफ्ट, ये शाफ्ट को क्या किया है, दोनों एंड्स पे फिक्स कर दिया है एंड ये शाफ्ट कहाँ पे, पॉइंट बी पे दोनों शाफ्ट कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो जब आपने टॉर्क टी लगाया तो टॉर्क टी लगाने की वजह से क्या हुआ, पॉइंट बी पर रोटेशन आया, पॉइंट बी पर क्या आया, एक रोटेशन आया। ना पॉइंट बी पे जो रोटेशन आया दैट इज सेम फॉर बोथ दी मेंबर, दोनों मेंबर में सेम ही होगा। ऐसा थोड़ी कि पॉइंट बी में दो रोटेशन आ जाएंगे, दो रोटेशन तो आना पॉसिबल नहीं। पॉइंट बी पे एक ही रोटेशन आएगा एंड दैट इज इक्वल फॉर बोथ दी मेंबर्स। बट आप देखिए, अब पॉइंट बी का रोटेशन आप देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए। अगर आप पॉइंट बी का रोटेशन देखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो अभी बी सी को आप भूल जाइए, बी सी पोर्शन को भूल जाइए, आप सिर्फ कंसीडर करिए ए बी पोर्शन। आप ए बी पोर्शन को कंसीडर करिए, बी सी को भूल जाइए, बी सी वाले पोर्शन को हटा दिया, सिर्फ ए बी पोर्शन को आपको कंसीडर करना है। नाउ पॉइंट बी पे आपने टॉर्क लगाया है टी, पॉइंट बी पे आपने टॉर्क लगाया टी इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो बी पे कैसा रोटेशन आएगा, बी पे रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, बी पे रोटेशन कैसा आएगा, क्लॉकवाइज रोटेशन आएगा। तो इन अगर बी का रोटेशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए दैट इज थीटा बी माइनस थीटा ए देखोगे तो कैसा रोटेशन आएगा, क्लॉकवाइज। द रोटेशन इज क्लॉकवाइज लाइक दिस। अब देखिए अब आप इसको भूल जाइए, ए बी पोर्शन को भूल जाइए, अब बी सी पोर्शन को देखिए, बी सी को। नाउ अब बी का रोटेशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो कैसा रोटेशन आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। दिस रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज। आप अपनी कॉपी में फिगर बनाइए या जो नोट्स दिए उसमें से देखिए और नोट्स को देख के आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अज्यूम करके देखिए, यू विल गेट। अगर बी का रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू सी देखोगे तो देखिए इस तरीके से लग रहा है ना, इस तरीके से लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। और बी का रोटेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए देखोगे तो कैसा लग रहा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अगर आप बी का रोटेशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू ए तो क्या आएगा, क्लॉकवाइज, और बी का रोटेशन देखोगे विथ रिस्पेक्ट टू सी तो क्या आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो अगर बी पे जो रोटेशन आ रहा है दैट इज सेम, दैट इज थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू थीटा बी विथ रिस्पेक्ट टू सी। बट ए के रिस्पेक्ट में वो क्लॉकवाइज है, बी के रिस्पेक्ट, सी के रिस्पेक्ट में वो एंटी क्लॉकवाइज है। दैट इज थीटा ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ
थीटा बी सी। सिमिलर आप यहाँ पे देख सकते हैं दैट स्प्रिंग 1 में जितना टेंशन आएगा स्प्रिंग 2 में उतना कॉम्प्रेशन आएगा। दोनों में डिफ्लेक्शन सेम रहेगा, बट एक में क्या आएगा टेंशन, दूसरे में क्या आएगा कॉम्प्रेशन। समझ में आया? सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड डिस्कस सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू टॉर्शन। एक दो टॉपिक बचे, दैट इज स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेशन बचा है एंड फेलियर ऑफ मटेरियल इन टॉर्शन बचा है। छोटे छोटे दो टॉपिक्स बचे, विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन विल मूव ऑन टू न्यूमेरिकल्स। सो दिस इज इट फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।